I think it is started. Yes, yes. So let us talk. We were talking about Negotiable Instrument Act. In case you wanted to ask any query, please ask. Else I'm going to start this. Yes. So we have discussed what is negotiable instrument, right? Negotiable means transferable. Like I mentioned, it is transferable to n number of times before its expiry. So all these features are of negotiable instrument. In case you have any query or anything you wanted to ask, please ask. We just have started the a brief introduction of negotiable instrument, right? It is transferable. It is transferable by delivery or by endorsement and delivery. I hope the difference between delivery and by endorsement and delivery is clear. Yes. In case you wanted to ask anything, please unmute and ask. Else I'm going to read your chat for this in case you have any doubt. Okay. Now I'm going to start new topic in yeah. So what are the different types of negotiable instruments? We are going to discuss three major types, though there was few more instruments, but these three are very prominent and important. First is promissory note, right? Promissory note, the word promise is very prominent. It's like somewhere we are promising to pay, right? So we will discuss promissory note today. I'm going to start with the meaning, definition, what are the features, right? How that is negotiable. Most important, how that is negotiable. So first is promissory note. Look at this. It is an instrument. Like I mentioned, it is an instrument. And please understand, when I use this word, I mean negotiable, right? Implied word is negotiable. In writing, yes. Containing an unconditional, this word is very important, undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money, right, only to order of the person or bearer of the instrument. So this is the definition given as per Negotiable Instrument Act 1881. Most important thing is number one, it is negotiable instrument, it is transferable. Number two, it is in writing, it is always in written form. The one who is writing down is making a promise, yes, I will make a payment of this amount at this time. So I'll show you the sample of promissory note after this. Third is very important, unconditional. There is no condition attached. उसमें कोई इफ बट नहीं है, पे करना है तो करना है, मैं तुम्हें तब दूंगा जब मेरे को बैंक से लोन मिल जाएगा. नो, इट इज नॉट ए प्रोमिसरी नोट. Promissory note is always unconditional. There is no condition attached to this kind of instrument. Condition का मतलब है there is no stipulation. So conditions होती हैं जो जिसमें जो fulfill होंगी तब ये note valid माना जाएगा. So there is no condition attached. It is signed by the maker. Maker is a I'll talk about parties. उसमें मैं आपको बताऊंगी how many parties are involved. अभी सिर्फ आप ये समझ सकते हैं, maker is a person who is writing down the note, who is making the promissory note, right? Who is saying to pay a certain sum of money. Why certain sum of money? Please understand. Because if money is in intervals, that is not acceptable. Specific amount has to be mentioned. जो मेकर है वो ये नहीं लिख सकता कि आई पे यू इन बिटवीन 10 to 15,000 आफ्टर 2 months. दिस इज नॉट अ राइट वे टू नोट डाउन द प्रोमिसरी नोट. अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिक, नंबर वन. अमाउंट मस्ट बी रिटन इन अ करेंसी वेयर इट इज टू बी डेल्ट अपॉन. ये नहीं है कि अगर आपका इनलैंड नोट है तो उसमें रुपीज चल रहा है तो आप रुपीज के अकॉर्डिंग लिखेंगे. जस्ट अ मिनट. Please be on time, right? Be on time. Okay. So as a maker, you cannot note down the amount in intervals. So intervals में क्या होगा?
पता ही नहीं है, देर इज़ अ वेग अमाउंट, वो 10,000 देगा, वो 12,000 देगा, वो 15,000 देगा, सो देर इज़ नो क्लैरिटी। सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब है कि अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिक, मस्ट बी सर्टेन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट मस्ट बी रिटन इन द करेंसी। आज अगर आप इंग्लैंड में डील कर रहे हो तो यू कैन नॉट राइट डाउन प्रोमिसरी नोट इन रुपीज फॉर्म, नो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यू हैव टू यूज पाउंड। आज अगर आप यूएस में डील कर रहे हो तो यू हैव टू मेंशन द अमाउंट इन डॉलर्स। आज अगर आप इंडियन फर्म के साथ डील कर रहे हो तो यू हैव टू मेंशन रुपीज। सो सर्टेन सम ऑफ मनी के 3 रूल्स हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नंबर 1, इट मस्ट बी स्पेसिफिक अमाउंट। Right. Number 2, it must be certain, so that there should be clarity. Number 3, very very important, currency of note. So it must be written in a specific currency, right, depending upon where it is to be given, which company, which country it is to be given, right. Only to order. Order is very important word. That means if I have written that I have to make the payment to Sushil, so definitely that person Sushil will have that promissory note. So if it is order, order means giving to specific person who can get it in cash. Bearer, yes, anyone जिसके हाथ में भी है. So order और bearer is डिपेंडिंग अपॉन मेकर। प्लीज़ अंडरस्टैंड, यहाँ पे कई बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ऑर्डर लिख दिया तो आगे ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता? हो सकता है। सुशील को जब आपने ये नोट दिया तो इट मीन सुशील हैज़ ए राइट टू गेट इट ट्रांसफर टू एनी पार्टी, कर सकता है वो। जब आपने बेयरर बना दिया तो जिसको भी वो पास होता रहेगा, नेम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने बेयरर लिख दिया तो जिसके हाथ में है वो जाके इन कैश कर सकता है, राइट। सुशील का अगर आपने नाम मेंशन किया है, उसको ऑर्डर बना दिया है, तो सुशील आगे पास करने के लिए उसका एक फॉर्मेट को अटैच करेगा। सुशील आगे जिसको भी इंडोर्स करेगा, जिसको भी आगे देगा, उसका भी नाम ऐड करेगा। सो प्रोमिसरी नोट अगर आप ऑर्डर बना देते हो तो उसको एज ए एनेक्स्चर यूज़ कर देगा वो, कि इसको पेमेंट करनी है इससे लेके। और अगर आपने बेयरर बना दिया तो उसको एनेक्स्चर यूज़ नहीं करेगा, वो किसी भी पर्सन को ऐसे ही दे देगा, डायरेक्ट दे देगा, right. So anyone, order में specific person, bearer में any person. Is it clear? Is the meaning clear? Yes, ma'am. Okay. Now look at this. Okay. So these are the parties. अगर broadly देखा जाए तो I have taken this as a broadly. I'll be talking about detail way also. Generally there are 2 parties. Generally. Right, if there is no transfer. So broadly का मतलब है I have taken this case way, right. Case number 1, when there is no transfer, yes. So there is one party, maker को हम drawer भी बोलते हैं. So this is the person who is writing down the note, number 1. This is the person who is promising to pay the amount, number 2. So maker or drawer is writing down the note and promising to pay specific amount unconditionally. ये वो पर्सन है जो कहेगा कि मैं पे करूँगा ही करूँगा और इस तारीख को इतने डेज में, इतने टाइम में, इतने अमाउंट, इतने इंटरेस्ट के साथ मैं आपको दूंगा. सो दिस इज अ पर्सन कॉल्ड मेकर. पेई जिसको अमाउंट मिलेगी, राइट. सो पेई वो पर्सन होगा, पेई वो कंपनी होगी जिसको वो अमाउंट जो लिखी हुई है उसको दी जाएगी. सो पेई इज अ पर्सन हु विल बी गेटिंग द पेमेंट, whom the payment is made, whom the amount is payable, right. Broadly अगर ये चाहे तो ये आगे पास कर सकता है. So when there is no transfer, तो generally 2 parties, but in detailed way, please look at this. These are those when there is a transfer, huh? Now understand this. Case B. तब कौन सी पार्टीज होंगी? ये 2 तो रहेंगी. मेकर अगेन हु इज
making the promissory note, who is promising that I will make you payment, so that person is called maker. मैं अभी इसके बाद आपको एक सैम्पल दिखाऊंगी which is talking about parties only, हाँ, कि promissory note दिखता कैसे है. पेई वो पर्सन है जिसको पेमेंट दी जाती है. पेई इज ए पर्सन हु इज रिसीविंग द पेमेंट. मेकर कह रहा है कि आई विल मेक ए पेमेंट टू मिस्टर सुशील. सो आई जो है वो एक मेकर है. जैसे मिस्टर राम इज प्रॉमिसिंग मिस्टर सुशील दैट आई विल मेक ए पेमेंट ऑफ 10,000. ओके, मिस्टर राम इज ए मेकर. किसको पे हो रही है? सुशील को. तो मिस्टर सुशील इज ए पेई. इज इट क्लियर? दीज टू पार्टीज आर क्लियर? Yes, ma'am. Holder is a person who is having that document. Originally it is called holder. मैं अभी आपको और पार्टीज जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट टू टर्म्स, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स. बट मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में अपने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि होल्डर ओरिजिनल पर्सन होता है. जैसे होल्डर इज ए ओरिजिनल हु इज हैविंग डॉक्यूमेंट जिसको पेमेंट देनी है. So holder and payee may be one, right? Holder is who is having that document who will receive the payment at the stipulated time. So he is a payee as such. तो अब आप कहेंगे कि मैम what is the difference between payee and holder? Let me tell you, payee and holder are similar in terms of getting the payment. So जो person जो hold कर रहा है वो holder है, right? तो आपका जो एक डॉक्यूमेंट है वो कितने भी टाइम तक आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो जितनों को भी आप ट्रांसफ़र करते जाओगे वो होल्डर कहलाते जाएंगे, राइट? सो अल्टीमेटली लास्ट में एट द डेट, जब वो डेट आ गई जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो होल्डर जो है वो माना जाएगा फाइनल होल्डर, राइट? सो होल्डर एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर दिया. पेई ही है, पेई ने आगे किसी को दे दिया. सो अगर राम ने सुशील को देना था, लुक एट दिस. सो राम इज ए मेकर एंड सुशील इज ए पेई. सुशील ने अगर आगे किसी को दिया है, मान लीजिए मोहन को दे दिया, राइट? सुशील विल हैव ट्रांसफर्ड हिज राइट. सो ये पेई से अब ये पेई बन गया, अब ये नया पेई बन गया. तो पेई जो है दैट इज होल्डर, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, जो होल्ड कर रहा है उसको. क्लियर? इंडोर्सर. इंडोर्सर इज हु इज इंडोर्सिंग, हु इज गिविंग, हु इज ट्रांसफरिंग द नोट. सो अब आप कहेंगे कि पेई ने होल्डर को ट्रांसफर किया तो होल्डर बना. इंडोर्सर कब बनेगा? इंडोर्सर तब बनेगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो, इंडोर्स कर रहे हो. उसके लिए होल्डर होना ज़रूरी है. आपके पास जब तक ओनरशिप नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते हो. सो पेई के पास ओनरशिप है तब वो इंडोर्स कर सकता है. तो इंडोर्सर एंड होल्डर में क्या डिफरेंस हुआ? होल्डर तो ओरिजिनली सुशील भी होल्डर ही है. सुशील अगर एक्सरसाइज करता है अपना राइट तो ये जो मोहन का है, मोहन इज बेसिकली इंडोर्सी. हाँ, जो इंडोर्स कर रहा है वो इंडोर्सर है. और जिसको हमने दे दिया, जिसके नाम पे हमने लिख दिया वो नोट, दैट इज कॉल्ड इंडोर्सी. सो आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि देयर इज वन पार्टी ए एंड बी, राइट? ए इज ए मेकर. ए ने पेमेंट करनी है तो मेकर ने इसको पेमेंट करनी है, तो ये पेई बना. अब पेई कितने तरह के हो सकते हैं वो जरा समझिए. पेई ओरिजिनली होल्डर होगा ही होगा. सो पेई एंड होल्डर इज वन, प्लीज अंडरस्टैंड. बट पेई ने अगर अपना राइट ऑफ ट्रांसफर एक्सरसाइज कर लिया, राइट ऑफ ट्रांसफर, तब पेई इंडोर्सर बन जाएगा और जिसके नाम पे दे दिया, राइट? दिस इज बेसिकली पेई to whom final payment is made, whom note is given, वो बन जाएगा इंडोर्सी. सो आप इसको चेन की तरह समझिएगा. आप लुक एट दिस. यस, कंपनी, राइट? कंपनी ने होलसेलर को पेमेंट करनी थी, होलसेलर ने रिटेलर को आगे करनी थी. सो कंपनी जो ओरिजिनली है वो मेकर है, उसने पेमेंट करनी ही करनी है. अब आपको जो कंपनी और होलसेलर है इसको पेमेंट करनी थी, होलसेलर ने कहा इसको दे दो. प्लीज अंडरस्टैंड, कंपनी एंड होलसेलर में दिस इज ओनली द रिलेशन कि कंपनी इज ए मेकर. प्लीज अंडरस्टैंड, कंपनी इज ए मेकर
and wholesaler is a payee. होलसेलर अगर आगे रिटेलर पे करता है तो होलसेलर क्या बन जाएगा, मेकर, और रिटेलर क्या बन जाएगा, पेई। पर पेई का मतलब है ऐसे जितने भी पेई बन रहे हैं ना वो एक प्रोसेस से बनते हैं। प्रोसेस क्या है कि ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उसको, उसका नाम लिखना पड़ेगा होलसेलर को, एक नोट एज ए नेक्स्टर लगा के कि यस मुझे इसने प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें इसके बाद आपका ये वाला नोट इसको पेमेंट जाएगा। तो प्रॉमिस कंपनी कर रही है कि मैं तुम्हें पेमेंट दूंगी, तो उसी की पेमेंट आगे पास करने का तरीका क्या है, एंडोर्समेंट। क्या तरीका है, एंडोर्समेंट। तो जैसे कंपनी ने अगर होलसेलर को देनी थी तो क्या तरीका था, डिलीवरी, बट उसके बाद जो शुरू होता जा रहा है वो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर ने फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी ने शॉपकीपर, तो कहीं ना कहीं ये खुद से मेकर पेई बनते जा रहे हैं। बट फाइनली जो इंडोर्स कर रहा है, यानी कि होलसेलर ने अगर रिटेलर को पेमेंट करनी है तो होलसेलर इज इंडोर्सर, रिटेलर क्या है, इंडोर्सी, राइट। सो जिसको पेमेंट देनी है इज इंडोर्सी, जिसको हमने राइट दे दिया कि यस आई विल मेक अ पेमेंट ऑन दिस डेट, तो वो इंडोर्सी कहलाएगा। और जो कह रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा वो इंडोर्सर कहलाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके ओके। सो नाउ लुक एट दिस डिटेल कि पेई होल्डर इंडोर्सर मे बी वन, राइट। कि कंपनी ने पेई जो है जो रिसीव करेगा पेमेंट, वो आगे अगर किसी को दे देगा तो वो पेई जो है मेकर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। अगर वो अपने पास ही होल्ड कर रहा है तो इट इज़ फाइन, वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, तो पेई एंड होल्डर इज़ वन। पेई ने जब अपना राइट आगे दे दिया तो पेई इंडोर्सर बन गया, और जिसको दिया वो इंडोर्सी बन गया। यस, इज इट क्लियर बच्चे? if any doubt is there just let me know. No, ma'am. Okay, let me take your attendance, मेरे सारे नेम्स नहीं आ रहे हैं, एक सेकेंड। Yes. So look at the sample. First of all, features, right? What are the features? What are the essentials of promissory note? Number one, it must be in writing. ये हम discuss कर चुके हैं, because law always believe on written records, written proofs. Verbally, if anybody is saying I am promising to pay you tomorrow or I am promising to pay you next week, that has no record. That is not valid in the eyes of law. विच डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड, कौन सा डॉक्यूमेंट मान्य माना जाता है, जो कि लिखित में होता है। तो ऐसे जितने भी लॉ की बात आती है तो वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स हों, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हों, रिटर्न नोट्स हों, वही मान्य माने जाते हैं। बाकी सब अवैध करार दिए जाते हैं क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सेकेंड, इट मस्ट बी अ प्रॉमिस। हाँ, जो एक पर्सन कह रहा है कि आई एम प्रॉमिसिंग टू पे अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी, डेफिनेट का मतलब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, तो इट इज़ प्रॉमिस, प्रॉमिसरी नोट है। तो यही चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यस मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हें ये अमाउंट दूंगा या दूंगी, वो प्रॉमिस। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, देयर मस्ट नॉट बी एनी कंडीशन अटैच्ड। कोई भी आपका वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आपने कुछ कंडीशन लगा दी हैं, कुछ स्टिपुलेशंस लगा दिए हैं, कुछ ऐसे बता दिया है कि यस मैं तभी दूंगा जब कि ये होगा। तो इफ़ काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज़ नॉट वैलिड कि आई विल पे यू इफ़ आई विल बी दिस, इफ आई विल गेट दिस। सो इफ नहीं होना चाहिए, प्रोमिसरी नोट इज नॉट वैलिड अगर उसमें वर्ड इफ है। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। मेकर, प्लीज अंडरस्टैंड, मेकर ही तो है जिसने पेमेंट करनी है। तो अगर उसने बिल लिख दिया, उसके सिग्नेचर नहीं है, तो वो भी मान्य नहीं माना जाएगा। इट मस्ट बी ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द मेकर। अगर मेकर एक पर्सन है इट इज़ फाइन, अगर कंपनी है तो साइंड एज वेल एज स्टैम्प्ड। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मेकर एक पर्सन है, सो इन दैट केस इट इज़ ओनली सिग्नेचर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ मेकर इज ए कंपनी देन इट इज साइन एज वेल एज स्टैम्प। जस्ट ए मिनट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये दोनों चीज़ें,
signature as well as stamping is required by the maker. Now don't forget maker कौन है? Who is maker? Somebody please unmute. Yes, Rakshita. Yes, Rakshita. Not well to speak. Okay, okay. Please take care. Chetan. Yes, Chetan. Am I audible? Somebody please unmute or type. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Yes, Shushmita. Yes, ma'am. Who is maker? Yes, ma'am. Who is maker in promissory note? Who is maker? योगेश, अब बच्चे सुन रहे हो क्या? आई एम पुटिंग more than 100% efforts in making that thing explainable. मैम मेकर है बेसिकली द पर्सन जो एग्जीक्यूट करता है प्रॉमिसरी नोट और जो पेमेंट करता है. Yes. हाँ, जिसने पेमेंट प्रॉमिस की है. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. नेक्स्ट इज another important, payee must be identified and must be certain. Yes, payee is a person to whom payment is made. He may be a person or he may be a company, right? So payee must be specific. हाँ, a person must be specific. ये नहीं कि I'll pay, I'm promising to pay either Sushil or Ram. No, it must be definite person. If it is order, then it must be definite, else it is bearer. And some payable must be certain, must be very much specific. It is like certain amount to be paid in a respective currency. Okay, yes. In case you have any doubt in these features, please ask. These are features, these are characteristics, these are essentials of the promissory note. Yes, is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it's the format of promissory note is like this, bache. Look at this. This is amount, right, which is to be paid. Look at this, rupees 10,000. It is very specific amount, certain amount, where it is being written, the place as well as date. 3 months after date. I mean, when it is drawn, it is 10th February, 3 months after date. Understand this, that February 10 को वो promise कर रहा है. Who? This Ram. Ram is promising to Psycho, who is having this address, right? I promise to pay Psycho on order the sum of 10,000 rupees for value received. So this word is very important. अंडरस्टैंड कि ये जो डेट है 3 months आफ्टर, इसमें अगर आप अकॉर्डिंगली देखें 10th February को ये ड्रॉ हुआ तो 3 months कब होंगे? 10th March, 10th April, 10th May. तो यानी कि 10th May इज द ड्यू डेट. उससे पहले ये कितनी बार भी ट्रांसफ़र हो सकता है. जब ये ट्रांसफ़र होगा तो जैसे साइको अगर किसी को देता है, क्योंकि ये ऑर्डर है, अब साइको का नाम से क्लियर है, उसका एड्रेस क्लियर है, तो जब साइको किसी को देगा तो यहाँ पे उस पर्सन का नाम आ जाएगा. अदरवाइज ये पेई है, ये मेकर है, साइको अभी पेई भी है और होल्डर भी है. साइको जब किसी को देगा, मान लीजिए सोहन, हाँ, तो ये सोहन क्या बन जाएगा? पेई. और ये क्या बन जाएगा? एंडोर्सर. क्या बन जाएगा? एंडोर्सर, क्योंकि इसने अपना राइट किसको दे दिया? सोहन को. तो पेई जो है एंडोर्सी भी है जब ये इसका नाम मेंशन होगा, और साइको उस टाइम पे बन जाएगा एंडोर्सर, क्योंकि इसने अपना डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया सोहन को. अंडरस्टैंड?
एक इम्पॉर्टेंट जो मैं चीज़ आपको हर डॉक्यूमेंट में भी बता दूंगी कि जब आपको मेंशन किया है 3 मंथ्स, जनरली ड्यू डेट इज 10th मई, बट 3 days आर गिवन एज एक्स्ट्रा एज ग्रेस डेज. तो इवेंचुअली दिस पर्सन कैन sue राम बाय 13th मई, 13th मई के बाद, क्योंकि 13th मई तक वो इसको अमाउंट दे सकता है. यानी कि अगर 10th मई को राम ने अकाउंट में पैसे जो है नहीं है, राम ने प्रॉमिस किया था 10,000 बट अभी नहीं है, तो 3 दिन एक एक्स्ट्रा डेज दिए जाते हैं जिसको हम ग्रेस डेज बोलते हैं. दैट इज गिवन एज पर द लॉ. 3 days. तो 13th मई के बाद इस पर्सन के पास राइट है टू स्यू राम, क्योंकि राम लिख रहा है. स्टैम्प का मतलब, साइन का मतलब, इट इज मेकर. मेकर जो है प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल पे यू दिस अमाउंट. कब? आफ्टर 3 months, यानी कि इस डेट से 3 months. अकॉर्डिंगली इट इज 10th मई, बट 3 days आर गिवन एज ग्रेस डेज. सो बाय 13th मई राम को कैसे भी करके साइको को इतनी अमाउंट पेमेंट करनी है. सो दिस इज हाउ प्रोमिसरी नोट लुक लाइक. यस. Anything which is not clear or any doubt which is there, please ask. Yes. No, ma'am. Okay, fine. मैम 3 months का पीरियड होता है इसका? नहीं, 3 months 2 months वो कुछ भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि आपके आपस में एडजस्टमेंट्स कैसी हैं. तो कुछ जगह जैसे होगा 1 month भी हो सकता है, 3 months 6 months, बट 3 days जो है ना उस पीरियड के बाद 3 days आर गिवन एज एक्स्ट्रा डेज, ग्रेस डेज. ओके मैम. यस. सो 3 months होना जरूरी नहीं है. वट इज इम्पॉर्टेंट कि राम ने 3 महीने का प्रॉमिस किया है कि मैं 3 महीने के बाद तुम्हें पेमेंट कर दूंगा. ये 3 months डिस्क्रिशनरी है बच्चे. जो मेकर कह रहा है वो हो सकता है 1 महीने का टाइम ले ले, 6 महीने का टाइम ले ले, बट जनरली ये 1 साल से कम का टाइम होता है. राइट. बट 3 days इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि आपका बिल जब ड्यू होना है उसके 3 days एक्स्ट्रा एज ए ग्रेस डेज आर गिवन टू द मेकर टू मेक द पेमेंट. तो 11th मई को अगर कहा जाए तो 11th मई को साइको उसको केस नहीं कर सकता कि पेमेंट नहीं दी तुम्हारे अकाउंट में जो है पेमेंट नहीं है, मेरा प्रोमिसरी नोट बाउंस बैक हो गया. बाउंस का मतलब है कि वो अमाउंट नहीं थी तो उस पर बाउंस का जो है स्टैंप लगा दी बैंक ने कि यस इसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आपको नहीं देंगे. राइट. वो 13th मई के बाद इसके पास लीगल राइट आ जाता है टू स्यू राम इफ पेमेंट इज नॉट गिवन बाय राम. Is it clear? Yes ma'am. Okay. So I'll discuss this bills of exchange tomorrow with you in the next class. Meanwhile, in case you have any doubt, just let me know. Else your test would start at 11:10. Please kindly complete it. I think Chetan is new to my class. If Chetan, you could reply, please. Are you new to my class or you have attended my classes before also? You are new. Okay, kindly introduce and yes, I welcome you. Please introduce yourself, what you have done and where are you from? Okay, right. I'm come from. If you can speak, it would be great.